राम तुम्हारा चरित्र ही स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैथिली शरण गुप्त की साकेत में लिखी गई ये पंक्तियां भगवान राम के पूरे उस जीवन चरित्र को हमारे सामने प्रकट करती है कि किस तरह से राम भारतीय जनमानस में पूरी तरह घुल मिल गए। आज साहित्य और सिनेमा में राम विषय पर इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस यह जो वेबिनार है, यह हमारी 108वीं कड़ी है, सॉरी 110वीं कड़ी है इस श्रृंखला की। इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारी परंपरा है, हम इस कार्यक्रम को शुरू करते समय सरस्वती वंदना की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करते हैं और इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर उषा साहनी को। एहसास तेरे मेरे, जिंदगी के रंग, मैं और मेरे अल्फाज तथा कुछ सुनी कुछ कही जैसे काव्य संकलनों की रचयिता और हर लाइफ इज वेज, जिंदगी ए वेब जैसे कथा संकलन की प्रणेता डॉक्टर उषा साहनी एक समीक्षक के रूप में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। साहित्य की विभिन्न धाराओं में, विधाओं में आप नियमित रूप से लिख रही हैं। शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ वे एक व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक के रूप में भी जुड़ी हुई है। हमारे इस श्रृंखला के प्रारंभ से आयोजन सचिव के रूप में इस श्रृंखला को गति देने के लिए, इसको वैचारिक दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए भी सतत प्रयत्नशील है। कम्युनिकेशन टुडे जो मीडिया त्रैमासिक है, उसके संपादकीय मंडल की भी आप सदस्य हैं। मैं डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना के माध्यम से आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करें। डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर। माँ शारदे के श्री चरणों में दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। Very good evening and a warm welcome to one and all present here on this virtual platform. We are fortunate to have you all here together once again on the 110th webinar of this dual webinar series. I had just used this term dual because we started this webinar series on 2nd of October 2020 under the able guidance of Professor Sanjeev Bhanavat, and the umbrella was Communication Today Media Bilingual Quarterly Journal, a very prestigious journal which has allowed the academicians, the research scholars, the students, as well as the media practitioners to put forth their views, ideas, thoughts, and intellectualism through black and white in this journal. Professor Bhanavat has tried his level best to benefit both the languages, not only concentrating upon English, but also people were there who could write in Hindi. Though when he started this journal 27 years back, more of the work was being done in English language only if we talk about media education. His efforts, we can see that this particular year is the 28th year of Communication Today, Media Bilingual Journal. Also, he has worked hard to bring forth many special issues related to media education, which surely are going to benefit all the people, all the
academicians, scholars, and students, those who want to know more about media fraternity. Also, he has taken a lot of pains to bring all these webinars on the YouTube channel of him that he started after the first webinar that we started on 2nd of October 2020. Of course, we all know that that was the time when people were fighting with a very, very painful pandemic, COVID-19. But throughout that era also, Professor Bhanavat kept on moving ahead, and till date, he is similarly energetic as he was in the beginning. We all, once again, when we are here, now this is something which I can say that we have upgraded a little bit more. After completing 100 webinars under the umbrella of communication today, the 101st webinar, we got to initiate as a collaboration with Bharati Vidyapeeth from Indraprastha University in New Delhi. And the Dean, Professor Huda, is here with us. His team has given a very strong technological support for this webinar series. And we started this series, and today we are running with the 110th webinar with the same platform. After many ups and downs also, we are looking forward for many more to come. And 1 century we have completed, but surely with the collaborative efforts of Professor Bhanavat's team and Professor Huda's team, we are looking forward for another century very soon, the way Professor Bhanavat is. Just now we were discussing, as Professor Huda was telling, that he has got a lot of strong treasure of all the speakers from various cities and even across the nation also. So today, when Professor Bhanavat got a little idea that something is happening in the nation or across us, he is very, very particular to bring forward a discussion regarding that particular issue. And today, when we are going to talk about Ram in media and literature, we all know that today is 30th of January, death anniversary of Mahatma Gandhi, which is also known as a Martyrs' Day. And recently, we all have witnessed the consecration ceremony of Ram in Ayodhya, which actually has given a push to Professor Bhanavat to come along with this topic so that we can understand the strong connection of Ram and Gandhiji. We all know that Gandhiji's belief in Ram was absolutely a different one, away from a religious concept. उन्होंने कहा कि मेरे लिए राम और रहीम एक ही हैं. That means we are not talking about a particular religion. We are just talking about some divinity. And he always wished राम राज्य की बात की उन्होंने, और यही कहा कि राम के नाम से दिन हम शुरू करते हैं और राम नाम सत्य है से जीवन का अंत होता है. We all know that Ram has been considered and observed as a symbol of virtue, righteousness, and moral duty, which we all actually need to follow at present also. If we talk about the literary outcome, definitely there are a lot many critical evaluations saying that maybe there were some patriarchal points in the character of Ram. But then apart from that, what all moralistic values he possessed, we can follow that, we should follow that. Films talked about the heroic side of Ram, portraying him as a divine warrior. And these visual mediums where the movies were taking place and people can see it on the screen, many a times these characters, those who played the role of Ram, they became so giant that people started believing that these human beings are the gods. So that is the strength of the film industry as well. So today we'll be discussing on both the aspects, literature as well as cinema, media, movies. Further, we all know that today we have 3 eminent speakers on this platform to discuss on this very topic.
Professor Loni from CCS University, a very strong person who is a very, very strong supporter of Hindi. He has left no city, as well as even across the nation, abroad. He has worked to support Hindi as much as possible. He is continuously working on that forum. We have Professor Ashish Pathak here from Shahid Mangal Pandey Government Girls PG College, Meerut, from the fraternity of Teachers Education. Also, we have Professor Sanjeev Kumar from the Teachers Education fraternity. Again, we all are looking forward for all three speakers' insights, and I'm sure that we are going to get benefited out of their ideas. Over to you, Professor Sanjeev Bhanavat. Thank you so much. वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहनी। आपने वेबिनार की पृष्ठभूमि से लेकर के राम के उस मूल्यपरक चरित्र का जिस तरह से अभिव्यक्त किया है, निश्चय ही राम भारतीय परंपरा में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। भगवान होते हुए भी वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मानवीय संदर्भों में भी हमें कई तरह की शिक्षाएं देते हैं। आज का दिन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में सदैव याद किए जाते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। गांधी ने राम राज्य की कल्पना की। गांधी के दौर में फिल्में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुई थी। संभवतः गांधी ने केवल राम राज्य एक ही फिल्म देखी थी। वो फिल्मों के पक्षधर भी नहीं थे। लेकिन जीवन के अंतिम समय में जब उन्हें गोली मारी गई, तब भी उनके मुंह से निकला, हे राम। तो राम का और गांधी का भी परस्पर बहुत गहरा संबंध है। और देखिए आप, जावेद अख्तर ने अपनी एक शायद उनकी फिल्म थी स्वदेश, जिसमें उन्होंने लिखा था, हे राम मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, हे जगत के अंतर्यामी, हे जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। तो राम का इतना विराट चरित्र है जिस हर व्यक्ति ने अपने अपने ढंग से देखा है। तो आज इस अवसर पर हमारे विशेषज्ञों के साथ हम संवाद शुरू करें, इसके पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्प्रिंगर सिंगापुर से प्रकाशित होने वाले इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रधान संपादक प्रोफेसर एमएन होड़ा साहब को। प्रोफेसर होड़ा मूलतः विज्ञान के विद्यार्थी हैं। कंप्यूटर साइंस उनका वैशिष्ट्य है। पिछले कई वर्षों से वे अध्यापन से जुड़े हुए हैं और उसके पूर्व ये दूसरे प्रोफेशन में थे। लेकिन शिक्षण के प्रति जो मोह है वो इन्हें इस क्षेत्र में ले आया। और अब एक शिक्षक के रूप में, प्रशासक के रूप में आपने जिस तरह से भारतीय विद्यापीठ के निदेशक के रूप में नेतृत्व प्रदान किया है, अपने संस्थान को अकादमिक उत्कृष्टता से लेकर आधारभूत ढांचे को विकसित करने में, वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्नातक, हृदय से कवि, लेखक, पत्रकार आदि अनेक तरह के गुण ये अपने व्यक्तित्व में समाहित किए हुए हैं। ऐसी शख्सियत को मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सभी के स्वागत उद्बोधन के लिए और इस विषय पर अपने कुछ विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए प्रोफेसर एमएन होड़ा। Good evening, everyone. Am I audible, Priyanka? Yes, sir. Yes, sir. That's great. So once again, good evening, नमस्कार। एंड चूंकि आज का प्रोग्राम हमारा लॉर्ड राम से कनेक्ट हुआ है, तो जय श्री राम जी।
Thank you so much, Banavat sir, for having given such a detailed introduction. We all are part of this organizing team, and we need to connect people, and that for what we are here. Dear friends, at the outset, let me take this opportunity to welcome all the eminent speakers today for this 110th National Webinar Series, which is on Sahitya और Cinema में राम, लॉर्ड राम और उनकी प्रेजेंस साहित्य और सिनेमा में। तो आज हमारे साथ जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं, अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, एकम्प्लिश्ड एक्सपर्ट्स हैं। प्रोफेसर लोहानी फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, डॉक्टर आशीष पाठक from SMP Government Girls PG College Meerut, and Dr. Sanjeev Kumar from Gautam Buddha Nagar Government PG College Badalpur, Gautam Buddha Nagar. So thank you so much to all of you for having accepted our invitation and being with all of us to enlighten us on such an important topic. It is not only a knowledge sharing session, rather joining hands together for such an auspicious day in terms of celebrating Lord Rama's Pran Pratishtha, the same week it has been, and that too because this date is also remembered as the Punyatithi of Mahatma Gandhi, the Bapu. As Sanjeev Banawat sir has already introduced, and Dr. Usha has also given the background, that how important this topic is for all of us. And dear friends, if you ask me, my personal feeling is that the entire life story of Lord Ram has or maybe his companions like Lord Lakshman and other people along with them. So this entire life story is nothing but about discussing duties, rights, and social responsibilities of an individual. His life is one of the novelest masterpiece of role model that offers a framework to all of us under which we may conceptualize, represent, comprehend the entire way of living in this world. And if you see, it not only illustrates the personal side, it also illustrates the professional side, illustrates the dharmic side, it illustrates the basic characteristics in the society, and at the same time it also illustrates or the scriptures which he has given in terms of Ramayana. If you Ramayana, if you see, it itself is have got a great influence on Sanskrit poetry, and particularly on the culture. And the main figures, if we see, is fundamental to the cultural consciousness of a number of nations. It mostly it connects and influence all of us in life of a citizen, functioning of a society, maybe especially the formation of a state, what we now claim as a Ram Raj. It is not only a Ram Raj or the name Lord Ram or Maryada Purush Ram, but rather a characteristic which inspires all of us. And when we are taking the name Lord Ram, this implies the characteristic which embodies him and which comes through this name should be embedded in our day-to-day life and should be followed with. And if we follow with, possibly many of the problems in the society will automatically go. That's the message. And if we keep on reading Ramayana, maybe at his time the Sanskrit was the only source, and later many of the authors and many of the producers from the film industry have done good work. But if we see even the Ramayana, it has a great impact on our Sahitya, and many things has emerged in our day-to-day literature, maybe any of the literature, not only the Sanskrit, rather Hindi, Tamil, and many other literature from that scripture. So that is a kind of message to all of us. So for such a novel work, we all of us are here, and thank you so much for having accepted our request. Dear friends, as all of you know, that this webinar series, Dr. Usha has also briefed, that was started in the backdrop of COVID-19 way back in 2020 and is being continued with sustainability. And hats off to Professor Sanjeev Banawat that he has got that much of energy that he tries that no such occasion is missed which in one or other way can be celebrated. And the purpose is not only the celebrating, purpose is to make people aware about the background of that occasion
And not only that, on that day we are making people aware, rather we are creating a huge repository on the YouTube through recording of these lectures. And if you go through our repository on YouTube, possibly over 300 hours recording is available now. And many of the things which otherwise, while going through this webinar in one day we may not understand, but as a student, if we repeat it and then again repeat it and recast it and then watch it, possibly we will understand that. So it is a huge knowledge repository, which in tomorrow's time could become a massive open online course like a MOOC course. And we may club a few of these sessions together and can become a full-fledged course in any specific area of society, or maybe especially the media series. So I will request to all of you, please utilize the repository which we have created, and all of us should attend with the same zeal, because if we attend with the same zeal, we participate, organizers get strength, and more importantly, Banawas sir gets strength, and then he gets that energy that he keeps we people also working. That's the kind of the purpose of this organization. COVID was again knocking our door. Somehow or other, we have avoided it. And probably if we keep on organizing this in a sustainable manner, COVID will never come. That is what is our commitment. So thank you so much. Wish you all the best. God bless you all. Keep learning despite disruptions, and stay safe, stay healthy, and be vibrant. Thank you so much. Over to you, Banawas sir. बहुत बहुत आभार हुड़ा साहब आपके इस आत्मीय उद्बोधन के लिए, और आपकी प्रेरणा, सहयोग, ये यात्रा अनवरत इसी रूप में जारी रहेगी। तो आइए इस संवाद को आगे बढ़ाने के पहले हम हमारे अतिथियों का, जो हमारे आज के विशेषज्ञ हैं, उनका स्वागत करते हैं ई बुके के माध्यम से। क्योंकि तकनीक का हम उपयोग कर रहे हैं, तो उसी माध्यम से हम पुष्पगुच्छ, हमारे तीनों जो मित्र हैं आज के इस वेबिनार के, उनका ये स्वागत बुके से, ई बुके ये ई बुके जरूर है, लेकिन इसकी जो खुशबू जिस एहसासात के साथ हम पहुंचाना चाहते हैं, वो आप सब लोग अपनी अपनी जगह से महसूस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है उन एहसासों का जो एहसास दिल पे दस्तक दे जाए। और इसी वजह से दो पंक्तियां मैंने खुशबू के लिए लिखी थी, जो इन बुके से आती है कि बड़ी मुश्किल में हूं, कैसे इजहार करूं, तू तो खुशबू है, कैसे गिरफ्तार करूं। तो हम इसे नहीं गिरफ्तार कर सकते, और इसे ओपन छोड़ा है बिना किसी बाउंड्री के, या आप तक और हम सब तक पहुंच रही है। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इसी इन फूलों की सुरभि के रूप में ही हमारे विचारों की खुशबू, सुरभि भी दिग दिगांतर में इसी तरह फैलती रहे। इसी विश्वास के साथ हम एक बार फिर भगवान राम को याद करते हैं। जैसा कि पहले भी कहा गया कि राम हमारे भारतीय जनमानस में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। भारतीय आस्था के वे एक तरह से प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक जीवन के एक ऐसे दिव्य पुरुष है जो अवतार तो हैं, लेकिन उनका जो मानवीय पक्ष है वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उनका पूरा जीवन चरित्र, चाहे वाल्मीकि के रामायण हो, रामचरितमानस तुलसीदास की लिखी हुई हो, या और भी जो रामायण या रामचरितमानस की तर्ज पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए विभिन्न भाषाओं में, उनमें मूल संदेश मानवता, नैतिकता, कर्तव्य बोध और पारिवारिक सहज स्नेह जैसे मूल्य उसमें कहीं न कहीं समावित है। नरेंद्र कोहली, दुर्भाग्य से अभी कुछ समय पहले उनका निधन हो गया। उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध भी था, मेरे विभाग भी आए थे, और दूरदर्शन में मैंने उनको इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने राम कथा को बिल्कुल नए संदर्भों में जोड़ा उपन्यासों के माध्यम से। दीक्षा, युद्ध, अवसर, संघर्ष की और आदि कुछ उनके वो उपन्यास थे जिसमें राम कथा को उन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लेकर के उन्होंने इस पूरे उन कसौटियों पर उसे कसने का एक अद्भुत प्रयास किया था। तो चाहे हमारे यहाँ लेखक हो, कवि हो, उपन्यासकार हो, उन्होंने राम को अपने अपने रूप में देखने की कोशिश की। केकई ने वरदान तो मांग लिया राम के वनवास का, लेकिन केकई की व्यथा को भी वो हिंदी का एक कवि है जो कहीं महसूस करता है। मैथिली शरण गुप्त की साकेत की मैंने आपसे बात की, जिन्होंने कहा था कि राम तुम्हारा चरित्र समकाव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम की शक्ति पूजा निराला, जब वो उसमें भी उन्होंने इस तरह की बात कही थी। तो किस तरह से हमारे कवियों ने, लेखकों ने, उपन्यासकारों ने, कहानीकारों ने अनेक रूपों में और एवं फिल्मों में भी
राम के अनेक रूप, हालांकि कुछ ही ऐसे कथानक हैं महत्वपूर्ण जिन पर मूलतः फिल्म बनाई गई। और लगभग एक सदी पहले, 106 वर्ष पहले पहली फिल्म आती है लंका दहन। दादा साहब फाल्के जो हमारे देश में फिल्मों के जनक माने जाते हैं, उनके निर्देशन में फिल्म बनी थी। और जो रोचक बात यह है कि उसमें एक होटल के कर्मचारी थे जिन्होंने इस फिल्म में दोनों रोल किए। अन्ना सालुके, राम और सीता दोनों के चरित्र उन्होंने निभाए। वो दौर था जब महिलाओं का फिल्मों में अभिनय करना अच्छा नहीं माना जाता था और पुरुष ही महिलाओं के जो चरित्र हैं उनको निर्वाह करते थे। तो आप कल्पना कीजिए किस खूबसूरती के साथ। और ऐसा कहते हैं वहां पर जब ये फिल्म लगी बॉम्बे में तो इतनी भीड़ पड़ती थी, 23 सप्ताह तक फिल्म चलती रही और 35,000 रुपए का एक दिन का कलेक्शन और बैलगाड़ियों में रख करके वो पैसा भेजा गया। इस तरह के उल्लेख मैंने इसमें पढ़े हैं। तो आप देखिए उस तरह से, मतलब एक शताब्दी पहले राम के प्रति लोगों में कितनी आस्था थी। तो मुख्य रूप से जो राम के जीवन के अलग अलग पक्ष हैं, चाहे वो राम के वनवास जाने की बात हो, भरत मिलाप की बात हो, लंका दहन की बात हो, ये इस तरह के जो प्रमुख प्रसंग हैं उन पर आधारित इस तरह की फिल्में बनाई गई। क्योंकि हमारे भारतीय फिल्मों का दौर वो तो साइलेंट दौर था, उसमें भी ये फिल्में बनी थी। मुख्य रूप से धार्मिक पौराणिक आख्यानों को ही आधार बनाया गया। तो लगभग 18 बड़ी, वैसे तो करीब 50 से अधिक फिल्में बन चुकी है राम कथा को लेकर के, लेकिन 17 बड़ी फिल्में आई और 18 तेलुगु में फिल्में आई, हो सकता है और भी भाषाओं में आई हो। और इसी तरह से टीवी शोज, रामायण से हमारी पीढ़ी के सभी लोग परिचित हैं कि जनवरी शायद 1887 की बात है जब रामायण का रामानंद सागर ने जिस तरह से करीब 84 या कितने एपिसोड्स उन्होंने बताए थे, और जब उनका प्रसारण हुआ था तो पूरे देश में लगभग कर्फ्यू की स्थिति हो गई थी। तो वो दौर भी हमने देखा है, कोरोना में इसका दोबारा पुनरावृत्ति भी की गई। तो इस तरह के धारावाहिकों के साथ आम आदमी का जुड़ाव अक्सर रहता है। तो आज हमने यह सोचा कि क्यों नहीं इस सारे परिदृश्य पर हम कहीं चर्चा करें जिसमें साहित्यकार भी हों और फिल्मों के विश्लेषक, आलोचक और शोध अनुसंधान कर रहे हमारे मित्र भी हों। तो इस दृष्टि से हमने इनको आमंत्रित किया है और इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ भाई डॉक्टर नवीन लोहिनी जी से। ये जब ये अपनी वेबिनार श्रृंखला शुरू हुई उसके पहले लोहिनी जी ने मुझे एक ऑनलाइन वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया था। आपने लगभग 47 दिन का कोरोना में पूरा प्रतिदिन एक सीरीज शुरू की थी हिंदी को लेकर के, वेब संगोष्ठी हिंदी गिरी शायद उसका नाम था। उसमें उन्होंने एक सेशन में मुझे बुलाया था। तब मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं इस तरह की श्रृंखला हम भी शुरू करें, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के फिर मैंने ये श्रृंखला शुरू की थी। और हिंदी गिरी में तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को बुलाया था, क्योंकि स्वयं स्विट्जरलैंड, चीन आदि कई देशों में उन्होंने अध्यापन कार्य किया है। हिंदी चीनी शब्दकोश के निर्माण में भी आपकी बड़ी भूमिका रही है। संप्रति आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में हिंदी एवं भारतीय विभाग, भाषा विभाग जो है उसके अध्यक्ष हैं, विश्वविद्यालय के डीन रह चुके हैं और एक वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों में कई दायित्वों का निर्वहन आपने किया है। आपके व्यक्तित्व के भी अनेक पक्ष हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, साहित्य की विभिन्न विधाओं में मूलतः व्यंग्य विधा आपकी लोकप्रिय विधा है। 5 लाख का हिंदी मास्टर, यह आपका एक व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। अज्ञेय की काव्य चेतना के आयाम, यह पुस्तक आपकी प्रकाशित हो चुकी है और अज्ञेय पर ही आपने डी.फिल की उपाधि भी प्राप्त की। नई सदी के उपन्यास आपका एक प्रमुख समीक्षा ग्रंथ है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, जनसत्ता, सहारा, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला आदि पत्रों में आप नियमित रूप से लिखते रहे हैं। आपकी कविताएं, पत्रकारी लेखन, पुस्तक समीक्षाएं, व्यंग्य लेखन इत्यादि छपते रहे हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी और हमारे जो निजी चैनल्स हैं रेडियो टेलीविजन के, उसमें भी आपकी उपस्थिति लगातार बनी रहती है। यूजीसी की अनेक प्रमुख शोध परियोजनाओं से आप जुड़े रहे। तो कुल मिलाकर के आपका एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। तो साहित्य के प्रति जो आपका जुड़ाव है, साहित्य के प्रति जो आपने एक गंभीर अध्येता रहे हैं साहित्य के, उस दृष्टि से हम चाहेंगे कि इस अवसर में इस विषय पर आप हमें कुछ उद्बोधन दें। आदरणीय प्रोफेसर नवीन लोहिनी जी। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद, बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। मैं आभारी हूं प्रोफेसर भानावत साहब का मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी मित्रों को धन्यवाद करता हूं। प्रोफेसर
एमएन हुड्डा साहब, हमारे ही विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई प्रोफेसर उषा स्वाने जी, और अन्य सभी मित्र, आशीष पाठक जी, संजीव कुमार जी, जो आज इस सत्र में अपना वक्तव्य रखेंगे। आप सभी जो ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सभी मित्रों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और इस देश के अनेक क्षेत्रों से जुड़े हुए नागरिकों का स्वागत करता हूं। राम के चरित्र के बारे में बहुत सारी बातें अभी तक हमारे मित्रों ने, वक्ताओं ने रखी हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जब राम की चरित्र पर लिखने और कहने की बात आती है, तो हर एक के पास अपने अपने अनुभव हैं, हर एक के पास अपना अपना अपनी अपनी समीक्षा है। तो मुझे ये लगता है कि राम को समझने के लिए जब कहा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। अब कवि बनने की क्षमता आप में होनी चाहिए, आप में अभिव्यक्ति की क्षमता है तो आप कुछ कहेंगे जरूर। अब राम आपके अपने हो सकते हैं, उसमें दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम ना आना कहने वाले लोग भी हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा कहने वाले लोग भी हैं, और अलग अलग तरह की परंपरा से, संस्कृत की परंपरा से, हमारे प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा से, हिंदी के अलावा भारतीय भाषाओं की परंपरा से, और विश्व साहित्य में भी अगर कहें तो अनेक अनेक भाषाओं में राम को लेकर जो रचनाएं हुई हैं, उनसे हम समझते हैं कि राम एक व्यापक रूप में हमारे साहित्य के हिस्से में एक ऐसा चरित्र है जिस पर कभी न कभी लोगों की नजर जाती है। संभव नहीं है कि सब लोग लिखेंगे, क्योंकि सबकी दृष्टि उस तरह से हो भी नहीं सकती और सबका विश्लेषण का तरीका भी अलग हो सकता है। जब हम कबीर और रामानंदी परंपरा के लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है एक अलग तरह के राम की बात हो रही है, जो हमारे जनजीवन में वहां पहुंच चुका है जहां पर राम हर अनुभव से जुड़ा हुआ है आपके लिए। इसलिए वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, उपनिषद, आध्यात्म रामायण, शिव पुराण, भुसुंडी रामायण, प्रसन्न राघव, ये तमाम तरह के जो विषय हैं, उनसे लेकर हम अनुमानास तक, रघुवंश तक आते हैं, तो हमें लगता है कि एक ऐसी लंबी चौड़ी सूची है जिसमें अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं के, संस्कृत के अलावा अन्य बोली भाषाओं के साहित्य को जोड़ते हैं तो आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कृतिवास रामायण, प्रतिमा नाटक, महावीर चरित, मिथिलाभास रामायण, राम अवतार चरित, कुमुदेन्दु रामायण, विलंका रामायण, वैदेही विलास, कंब रामायण, दशरथ जातक, पवन चरिव, अनेकानेक रचनाएं। और जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें लगता है भारत में तो राम है, लेकिन जब हम इंडोनेशिया में, जापान में, कंबोडिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, नेपाल में, श्रीलंका में, चीन में, जापान में, दुनिया के तमाम तमाम उन देशों में जहां भारतीय गए, मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, गयाना में, ट्रिनिडाड में, दक्षिण अफ्रीका में, और बाद के देशों में अब जहां कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम अरब देशों के अलावा पूर्वी एशिया और मध्य यूरोप के तमाम देशों में, अरब दुनिया के बड़े देशों में, सब जगह किसी न किसी रूप में राम को कहा, लिखा, बोला, समझा जा रहा है। अभी नरेंद्र कोहली जी का जिक्र किया था भानावत जी ने, तो हम लोग ये भी समझते हैं कि राम कथा के अनेकानेक पाठ हैं हमारे पास, और उन अनेकानेक पाठों में कोई गद्य में पाठ है, कोई कविता का पाठ है, और कोई पाठ उस तरह से है कि हमने कहा कि राम को बात करते हुए हम सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा के हिसाब से बात करते हैं। हमारे लिए तो राम हर तरह है, वो हर कण कण में है, और अगर वो हर कण कण में है तो वो आपके लिए आध्यात्म का विषय हो सकता है, वो आपके लिए प्रेम का विषय हो सकता है। जैसे हम कहेंगे कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए फिर आपके बखान के कोई भी शब्द कम है और कोई भी शब्द पूरे हैं। राम की भक्ति को लेकर के जब रघुवंश महाकाव्यम में उसका हिस्सा मिलता है और पाली प्राकृत अपभ्रंश में मिलता है, अनेक तरह के जो ग्रंथ लिखे गए उनमें मिलता है, तो राम को लेकर तुलसी पर हमारी दृष्टि बार बार आती है, वाल्मीकि पर बार बार आती है। हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते हम रामचंद्रिका और फिर साकेत तक भी आते हैं, फिर हम गद्य रचनाओं में देखते हैं, और आजकल पिछले अगर 200-250 वर्ष की परंपरा में भक्ति काव्य के पाठ, और पिछले 30-40 वर्षों में जब से टेलीविजन पर राम कथा प्रवाहित हुई, और उसके बाद के हिस्से में जो राम कथा से जुड़े हुए विभिन्न फिल्मांकन हुए, उन सब में भी राम को हम अलग अलग कथा के साथ, अलग अलग तरह की भावभूमि के साथ प्रस्तुत होता पाते हैं। इसलिए पहली बात तो ये कि राम कथा क्यों प्रचार, क्यों इतनी समृद्ध तरीके से हम सबके बीच पहुंचती है।
एक बड़ा विचार है उस पर, जिसमें तुलसी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो राम के चरित्र से हमको सीख मिलती है कि हम दूसरे के हित को अपना हित मानते हैं। अगर हम जिसे लोकमत और वेद मत कहते हैं, तो लोकमत और वेद मत दोनों में पहली बात यह है कि आपने अपने लिए कितनी चीज ढूंढी, और जो वेद मत है या लोकमत है उसमें समन्वय की बात सबसे बड़ी बात है कि तमाम तरह की संस्कृतियां, तमाम तरह के आचार विचार, तमाम तरह के जो उस समय चरित्र दिखाए गए राम कथा में, उन सब के बीच में भी राम से हम शैव वैष्णव एकता की बात सुनते हैं तो शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोही सपने नहीं भावा। अब शिव और शैव और वैष्णव परंपरा को मिलाने के लिए इसलिए राम को ये कहना पड़ा या कहलवाया तुलसी ने कि भाई देश में, दुनिया में हम एक मनुष्य के संस्कृति के संदर्भ में अगर देखते हैं तो हमको सभी को उसी तरह से अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए सगुण अगुण की बात भी आ गई, सगुण निर्गुण की भी बात आ गई, और इसीलिए शैव वैष्णव की भी बात आ गई। ईश्वरीय तत्व के जो भी भिन्न भिन्न रूप है उन सब में अगर राम कथा आई और उसमें सभी लोगों ने समन्वय को बड़ी कथा, बड़ा उपादान के तौर पर राम चरित्र कथा से जोड़ा, तो हम लोग संस्कृत नाटकों को भी अगर देखते हैं, वहां पर भास ने जब नाटक रचा, अभिषेक नाटक है, या भवभूति का महावीर चरितम है, उत्तर राम चरितम है, या फिर अनंग राघव आता है, हनुमानाष्टक आता है, तमाम नाटकों में। और इन बौद्ध और जैन कवियों ने जो राम काव्य लिखे उनमें भी अगर हम देखते हैं तो वहां भी राम काव्य की अलग अलग परंपराएं मिलती हैं। संहिताओं में राम काव्य हमें अलग तरह से मिलते हैं, जो वैष्णव संहिताएं हैं, उपनिषद हैं, उन सब में अलग तरह से राम कथा के रूप मिलते हैं। और महाभारत और जो पुराणों में राम कथा आई उसमें, जैसे महाभारत में द्रोण पर्व है, शांति पर्व है, आरण्यक पर्व है, उन सब जगहों पर किसी न किसी रूप में राम कथा के संदर्भ दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी समय हमारे यहाँ से गुजरा है, पिछला अनेकानेक हजारों हजार वर्ष के संदर्भ से छोड़ भी दें तो पिछले अगर हम 400-500 वर्ष और 600 वर्ष के हिस्से में राम के संदर्भित लेखन को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा साहित्य का हमारे पास एक तरह से भंडार है। लेकिन अगर हिंदी रचना तक आने से पहले हम देखें तो एक बड़ी परंपरा संस्कृत और उससे जुड़ी हुई है, और जब हिंदी में आते हैं तो रामानंद हमें मिलते हैं। रामानंद जब कहते हैं आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अब ये रामानंद की जो हनुमान लला की कथा है वो दुष्ट दलन की है, और ये दुष्ट दलन को हम तुलसी के यहाँ पे आते हुए देखते हैं। जब भय बिनु होत न प्रीति कहते हैं वो, तो अब हम कहते हैं राम तो एक ऐसा चरित्र है, उदात्त चरित्र, वह जहाँ क्रोध गुस्से की कोई बात नहीं है, लेकिन बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीति। जब हम सुंदरकांड में इस प्रसंग को देखते हैं तो हमें लगता है कि अवसर आने पर क्रोध भी एक मानवीय चरित्र की विशिष्टता है, जहां पर आप अपने असहमति को दर्ज करते हैं, और उस असहमति का परिणाम ये होता है कि समुद्र मार्ग छोड़ देता है। जिस समुद्र की कल्पना नहीं की जा सकती वो मार्ग छोड़ दे, वही मार्ग छोड़ देता है। तो राम कथा के जो स्वरूप हैं वो केवल उस रूप में नहीं है कि हम दैवीय चरित्र के संदर्भ से ही केवल ताली तो हम पीटें, वाह वाह हम करें, भक्ति पाठ करते हम दिखाई दें, काम हमारा सारा रावण का हो, और राम की कथा पर हम केवल अपना उद्योग इतना मात्र करें कि जब भी अवसर मिले केवल नारे लगाएं और केवल भक्ति पाठ करें, इससे नहीं चलेगा। मैं राम कथा के हिस्से में उस रूप में भी शामिल रहा जब मैं बचपन में राम कथा से जुड़े हुए रामलीला में भरत का पाठ करता था, तो मुझे राम के उस आचरण की बात मिली कि जैसे राम ने कहा कि भायब भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कछु कहब थोर सखी होई, राम बंधुअस काहे न होई। तो राम कथा के वो भी प्रसंग हैं जहाँ राम की भक्ति को हम स्वीकार करते हैं, तो वो भरत की भक्ति को स्वीकार करते हैं, वो लक्ष्मण की भक्ति को स्वीकार करते हैं, वो हनुमान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, वो सबरी की भक्ति को स्वीकार करते हैं। उनके यहाँ हर छोटे बड़े के लिए प्रेम है, इसलिए राम विशिष्ट है। इसलिए राम कथा के विभिन्न संदर्भों में अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं। इसलिए जब रामानंद की बात आती है, अग्रदास की बात आती है, अग्रदास की ध्यान मंजरी है, राम भजन मंजरी है, रामाष्टायम है, उपासना बावनी है, पदावली है,
उसमें उन्होंने 16वीं शताब्दी में जो रचनाएं की, उन रचनाओं में, फिर ईश्वरदास की रचनाओं में जो भरत मिलाप कृति है, उनकी अंकत पैच कृति है, उनमें किस तरह से रावण की सभा में अंगद की प्रतिज्ञा को प्रदर्शित करते हैं ईश्वरदास, और वहां पर राम की भक्ति के प्रति उनका जो स्वरूप है वो विशिष्ट दिखाई देता है। तुलसी से हम सब परिचित हैं, इसलिए जब तुलसी की दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, तमाम रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जो भी प्रसंग हैं उसमें आए हुए वो कई कई प्रसंग हमें अन्य भावधाराओं में बाद में और पूर्व में दिखाई भी देते हैं। इसलिए तुलसी ने कभी ये नहीं कहा कि ये सब कुछ मेरा है, मेरा ज्ञान है। उन्होंने कहा था, नाना पुराण निगमागम सम्मत यत् रामायणे अधीतम किंचितो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातन होती। वो कह रहे थे कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो वेदों से, पुराणों से, उपनिषद से, कथा आख्यानों से, तमाम प्रसंगों से जो राम कथा मिली उसको मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसलिए तुलसी ने भी वो गौरव प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने सबको श्रेय दिया। तो राम कथा का जो सबसे बड़ा उत्पाद्य है, रामचरित्र का जो सबसे बड़ा उत्पाद्य है, वो है श्रेय देना, प्रेम देना दूसरों को, और दूसरे की स्वीकृति के साथ अपने को आगे बढ़ाना। इसलिए राम सतसतई सतसई है, जो हनुमान बाहुक है, जो छप्पय रामायण है, जो कड़खा रामायण है, जो रोला रामायण है, झूला रामायण है, कुंडलिया रामायण है, इन सब ग्रंथों में हम अलग अलग संदर्भों में पाते हैं चीजों को। इसलिए रामचरितमानस चूंकि अवधि में लिखा गया एक जन काव्य बन गया, उसको आम लोगों तक पहुंचा पाए, तो उसकी प्रतीति हम लोगों तक विशिष्ट तौर पर पहुंची। लेकिन नाभादास का भक्तमाल बहुत चर्चित होता है बाद में, और उसकी जो शैली है उससे हम प्रभावित होते हैं। केशवदास को जब हम देखते हैं, उन्होंने रामचंद्रिका जिस रूप में लिखी और जिस तरह से लोगों के बीच एक कथा का नया रूप पहुंचा, चाहे वो अलंकारिक और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण प्रयोग था, उसका भी एक अलग रूप है। नरहरि दास की जो परुषे रामायण है वो भी एक विशिष्ट रचना है। इसलिए रामकाव्य परंपरा में रामायण महानाटक है, राम रासो है, अवध विलास है, और कपूर चंद्रिका की रामायण जो गुरुमुखी लिपि में है, इन सब में अलग अलग तरह के विशिष्ट रूप हमें पाते हैं। और फिर जब हम दक्षिण भारत तक जाते हैं, पूर्वी भारत में जाते हैं, अन्य अन्य देशों तक पहुंचते हैं, तो हमें इन सब में, सब कथाओं में किसी न किसी रूप में राम कथा के विशिष्ट रूप मिलते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो गद्य में, पद्य में, नाट्य में, कविता के भिन्न भिन्न रूपों में आते आते अगर हम राम की शक्ति पूजा देखते हैं, जो आजकल हमारे यहाँ पाठ्यक्रमों का हिस्सा भी है, और वहां पर आते हुए देखते हैं कि राम का एक नया स्वरूप हमें दिखाई देता है। लोगों ने कहा कविता छोटी है, लेकिन चूंकि राम कथा का वर्णन है, राम कथा का एक विशिष्ट प्रसंग है, तो महाकाव्यात्मक कविता है। तो इसका मतलब कई बार हम उसका मूल्यांकन इस रूप में भी करते हैं कि रामचरित्र की आख्यान हो जाने से वो कथा विशिष्ट हो जाती है। एक और विशेष बात जो नारी के संदर्भ से बार बार राम कथा में आती है, तो तुलसी ने जब ये कहा, कृतविधि सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने हो सुख नाही, ये पराधीनता का बोध तब भी हम महसूस कर रहे थे। और स्त्री के संदर्भ में जो अलग अलग प्रसंग आते हैं तुलसी को लेकर, ये विशेष प्रसंग है जहां पर उन्होंने स्त्री को एक विशिष्ट व्यक्तित्व के संदर्भ में, बराबरी के संदर्भ में भी चित्रित किया। इसलिए जहां भी हम देखते हैं राम कथा के प्रसंग, वहां राम कथा में जो कमजोर पात्र हैं, जो स्त्री पात्र हैं, उनको विशिष्ट स्थान मिलने की बात आती है। इसलिए साकेत जब आ गया हमारे पास, तो साकेत में उर्मिला है, मंदोदरी है, श्रुति कीर्ति है, मांडवी है, और जितने भी महिला चरित्र हैं, कैकेयी है, उन सब चरित्रों को फिर से देखने की कोशिश हुई कि राम कथा के ये चरित्र किस तरह से छूट गए या रह गए। इसलिए हम जिनको भी राम कथा के संदर्भ से लिखते हुए देखते हैं, उन सबको इस रूप में देखते हैं कि राम कथा किस तरह से तुलसी के लिए तो विशिष्ट थी, हम सब के लिए विशिष्ट थी। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है रामचरितमानस को लेकर, उन्होंने कहा कि रामचरित के सौंदर्य द्वारा तुलसी जी ने जनता को लोक धर्म की ओर फिर से आकर्षित किया, वह निष्फल नहीं हुआ। वैरागियों का सुधार चाहे उसमें न हुआ हो, पर परोक्ष रूप में साधारण गृहस्थ जनता की प्रवृत्ति का कुछ संस्कार हुआ। अब ये प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, और उसके अलावा राम कथा के जो विभिन्न संदर्भ हैं, जिनमें खास तौर से लोक मंगल की साधना को या लोक मंगल की भावना को स्थापित करने का जो तुलसी का श्रेय है, जो उनका एक तरह से प्रेय है हमारे लिए, वो विशिष्ट है।
तो मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे लिए राम कथा पर, के विषय पर, राम संदर्भित लिखी गई पुस्तकों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न संदर्भ है, लेकिन जो भी प्रामाणिक चरित्रों की बात है राम कथा के, उन सब प्रामाणिक चरित्रों से एक चीज तो हमें प्राप्त होती है कि जब भी सगुण राम की बात आए, चाहे निर्गुण राम की बात आए, राम को तो हम दशरथ सुत के संदर्भ में, जब विशिष्ट कथा के संदर्भ में देखते हैं, जिनके संदर्भ में अभी शुरुआत में चर्चा भी की कि किस रूप में राम कथा आगे बढ़ती है, तो हमारे लिए बहुत विशिष्ट कथा है। अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में राम कथा एक देश की कथा नहीं है। अब वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा काव्य, एक ऐसा रचना विशेष का पात्र है राम, जो पूरे दुनिया में चर्चित और प्रसिद्ध है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हम गद्य में भी जब देखते हैं, चाहे साहित्य के इतिहास लेख आए, बाद में तुलसी से जुड़े हुए अनेक समीक्षकों ने काम किया, भक्ति काव्य को लेके लोगों ने कार्य किया, और जो तुलनात्मक और विवेचनात्मक साहित्य भी आए विभिन्न बोली भाषाओं के। हम कई बार ये कहते हैं कि आधुनिक काल में जब राम कथा को देखा गया आधुनिक संदर्भों में, तो कई बार उसके भिन्न भिन्न रूप भी आते हैं, वहाँ पर स्थानीय कथाएं भी आती हैं। तो उन स्थानीय कथाओं का भी समन्वय का जो सौंदर्य है वो राम कथा से जुड़ता है। इसलिए हम सभी जो पात्र हैं, चाहे वो महिला पात्र मंदोदरी, सुरसा, कौशल्या, तारा, सीता, कैकेयी, मंथरा, शूर्पणखा, ताड़का, सबके चरित्रों को जब देखते हैं राम कथा में, उनके अपने स्वरूप है। अगर ये पात्र नहीं होते तो शायद राम कथा इस तरह से हमारे सामने विशिष्ट तौर पर नहीं आ पाती। इसलिए राम कथा में जो भी चरित्र है वो राम को आगे बढ़ाने वाले चरित्र है। अगर उन सब के साथ राम है तो राम हमें विशिष्ट दिखते हैं। अगर सबरी है तो वो विशिष्ट हो जाते हैं, केवट है तो वो विशिष्ट हो जाते हैं, जटायु है तो वो विशिष्ट हो जाते हैं। इन सब के विशिष्ट होने का कारण राम कथा से जुड़ना है। तो इस रूप में राम हमारे लिए एक विशिष्ट पात्र है, और राम कथा हमारे जीवन संदर्भों से, हमारे साहित्यिक संदर्भों से और हमारे आध्यात्मिक संदर्भों से, जो लोग जिस रूप में उससे जुड़ना चाहते हैं उनको कुछ न कुछ हल देती है, कुछ न कुछ विशेष प्रयोजन देती है। तो राम कथा के संदर्भ में मैं अपनी बात, क्योंकि मुझे जो निर्धारित समय दिया गया था उतना समय मैंने पूरा किया। मैं अपने सभी मित्रों को जो इस समय यहाँ जुड़े हैं और जो बाद में भी सुन पाएंगे, सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये भी जरूर कहूँगा कि भक्ति भाव उतना ही आवश्यक है जितना उसका प्रेय श्रेय जो हम दूसरों को दें, और सबको समान भाव से देखें, सीखें, तो ही राम काव्य पर बात करने का भी औचित्य है, तो ही राम काव्य पर चर्चा करने का भी संदर्भ बनता है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार लोहिनी जी। आपने हिंदी, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश आदि अनेक भाषाओं में राम के चरित्र को जिस रूप में व्यक्त किया गया, और भारतीय भाषाओं में नहीं बल्कि विदेशी साहित्य में भी राम की जिस तरह से अभिव्यक्ति हुई है, उसका बहुत विस्तार से उल्लेख किया। अनेक रचनाकारों के उदाहरण देते हुए राम के जीवन के अलग अलग पक्षों को आपने उजागर किया, और किस तरह से इन रचनाकारों ने तुलसी के शब्दों में लोक मंगल की भावना, जिसे प्रेय और श्रेय के रूप में आपने प्रतीकात्मक उसको बताया, उसकी आपने व्याख्या की। निश्चय ही राम का जीवन बहुत विराट है, राम का चरित्र बहुत विराट है, और इसीलिए शायद ये दुनिया भर के साहित्यकारों के लिए एक ऐसा विषय रहा है जिसमें उन्होंने राम के जीवन से जुड़े हुए सभी पात्रों को अपने अपने ढंग से देखने की कोशिश की। बहुत बहुत आभार। उसके बाद कोई सवाल यदि हमारे संभागियों के होते हैं तो उनको बाद में अपन टेकअप करेंगे। तो निश्चय ही आपके वक्तव्य से ध्वनि निकलती है कि राम अवतार है लेकिन मानव भी है। आम इंसान की तरह वो कष्टों को भी सहन करते हैं। उनका जीवन मानव से महामानव बनने की यात्रा है, पुरुष से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की यात्रा है। वो निर्बल के बल है। राम कल्पना भी है तो राम इतिहास भी है, राम राजा भी है तो राम आम आदमी भी है, आम जन भी है। तो राम के इस साहित्यिक रूप के साथ साथ, जैसा प्रारंभ में बात हुई कि फिल्मों में भी राम का बहुत ही मनोयोग से चित्रण किया है हमारे फिल्मकारों ने, या यो कहूं लंका दहन से लेकर के आदि पुरुष। पहली फिल्म थी लंका दहन 1917 में, और अभी रिसेंटली आदि पुरुष, जिसको लेके विवाद भी हुए थे। यहां तक की यात्रा में
अनेक प्रसंग हमने देखे, अनेक मोड़ हमने देखे। और फिल्में ही क्यों, उन फिल्मी गीतों के माध्यम से, उन भजनों के माध्यम से, बहुत सारे भजन गायक हमारे यहाँ प्रिय हैं। पंडित जसराज हैं, कृष्णदास हैं, रविंद्र जैन हैं, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, हरिओम शरण, अनूप जलोटा, नरेंद्र चंचल, अनुराधा पौडवाल, न जाने कितने गायक गायिकाओं ने ऐसे राम भजन गाए हैं जो मुझे लगता है कि शायद शाश्वत हैं, लंबे समय तक हमारे जीवन में वो कहीं न कहीं रचे बसे रहेंगे। तो आइए उनके उस फिल्मी पक्ष पर लेके कि राम को लेकर के किस तरह से फिल्म में उनको चित्रित किया गया है या फिल्मों की क्या भूमिका रही है, मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आशीष पाठक को। डॉक्टर आशीष पाठक शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज मेरठ में, जो उनका टीचर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अध्यापन कार्य कर रहे हैं। लगभग 1 दशक से अधिक का समय आपको शिक्षण से जुड़े हुए हो गया है। आपके करियर की शुरुआत मध्य प्रदेश के दतिया शहर से हुई थी, जहाँ आपने अध्यापन शुरू किया। उसके बाद झांसी में पढ़ाया और अब पिछले कुछ वर्षों से आप मेरठ में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष मूलतः विज्ञान के विद्यार्थी हैं। पर्यावरण शिक्षा पर आपने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शैक्षिक मनोविज्ञान आपके विशिष्टीकरण के प्रमुख क्षेत्र हैं और आपदा प्रबंधन में भी आपने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एक शिक्षक के रूप में अनेक अकादमिक आयोजनों के साथ आपका सतत जुड़ाव है। पत्र पत्रिकाओं में आपके शोध पत्र प्रकाशित होते रहे हैं और आपने विभिन्न पुस्तकों के लिए जो कुछ चैप्टर्स भी लिखे हैं। अकादमिक आयोजनों में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में आपके जो शोध पत्र थे उनको श्रेष्ठ शोध पत्र के रूप में भी पुरस्कृत किया गया है। मैं डॉक्टर आशीष पाठक से अनुरोध करूंगा कि वे इस पक्ष पर अपने कुछ विचार हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर आशीष पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भानावत सर। मैं आपको सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे अपने इस मंच पर जुड़ने का, अपने विचारों को रखने का अवसर प्रदान किया। जय श्री राम सभी साथियों को। देखिए, जो राम नाम है, जो राम नाम है, यह केवल एक नाम मात्र नहीं है, अपितु ये एक मंत्र है। मंत्र है, एक ऐसा मंत्र जिसका यदि हम नित्य स्मरण करेंगे तो निश्चित ही तुलसीदास जी के अनुसार कहा गया है कि रमते कड़े कड़े इति रामा। यानी यदि भगवान राम का हम नित्य स्मरण करते हैं तो हम अपने दुखों से पार पा जाएँगे, क्योंकि भगवान राम इस प्रकृति के कण-कण में विद्यमान है और भगवान राम इसीलिए राम हैं क्योंकि भगवान राम भक्तों के हृदय में रमते हैं, यानी रमण करते हैं। भगवान राम के चरित्र पर मैं देखता हूँ कि सबसे पहला जो मैंने काफ़ी इसको देखा, पढ़ा कि कहाँ से सबसे पहले भगवान राम को लेकर समाज में सबसे पहले प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। तो देखते हैं तो जो ऋषि वाल्मीकि जी थे, वो सर्वप्रथम उन्होंने भगवान राम को लेकर एक महाकाव्य की रचना की। हालाँकि ऐसा नहीं है कि महर्षि वाल्मीकि से पूर्व भगवान राम के अस्तित्व का कोई उल्लेख नहीं मिलता। हमारे जो वेद हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऋग्वेद में भगवान राम का नाम कई बार उल्लेखित हुआ है। इसके अलावा जो बौद्धों की जातक कथाएँ होती हैं, उसमें भी भगवान राम की अनेकों कथाओं का उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात फिर ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित आदि महाकाव्य, जिसमें मुख्य रूप से भगवान श्री राम की पूर्ण जीवन गाथा का वर्णन है, इसीलिए इन्होंने अपनी इस रचना का नाम रामायण रखा था। रामायण की रचना के पश्चात अनेकों बीच-बीच में जो लेखक आए, उन्होंने रामायण के ऊपर अनेकों भाषाओं में अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने तरीके से भगवान राम की जो शौर्य गाथा है या जो उनका अपना जीवन चरित्र रहा है, उसके ऊपर अपनी रचनाएँ लिखी हैं। और इसके बाद धीरे-धीरे, जैसा कि देखिए हम लोग जानते हैं कि ज़माना धीरे-धीरे साहित्य से निकलकर मल्टीमीडिया की ओर आकर्षित हो गया और अब वर्तमान समय जो है, अब साहित्यों की जगह अब हम जो हमारी युवा पीढ़ी है, मुख्य रूप से यह साहित्य का पाठ करने की जगह मल्टीमीडिया में अधिक रुचि लेती है। तो मल्टीमीडिया में यानी कि सिनेमा में जो सर्वप्रथम हमारे, जैसा कि प्रोफ़ेसर भानावत जी ने अभी बताया था कि सर्वप्रथम भगवान राम पर बनने वाली जो फ़ीचर फ़िल्म थी हमारे भारत देश में, वो थी लंका दहन, जो कि सन 1917 में दादा साहब फाल्के ने बनाई थी।
दादा साहब फाल्के एक बार विदेश में गए हुए थे और एक्चुअली ये फ़िल्म क्यों बनी? तो इसके पीछे तब एक बार विदेश में गए हुए थे, वहाँ पर ईसा मसीह जी के ऊपर उन्होंने एक फ़ीचर फ़िल्म को देखा और वहाँ से उनको प्रेरणा मिली और सर्वप्रथम हिंदुस्तान में आकर उन्होंने सबसे पहले 1913 में तो राजा हरिश्चंद्र वो ऑलरेडी बना चुके थे, जो कि पहली साइलेंट मूवी थी। तो इसी से प्रेरणा होकर उन्होंने सोचा कि भई भगवान राम के जीवन चरित्र को पूरे भारतवर्ष में और देश-विदेश में प्रसारित करने के लिए उन्होंने एक और मूक फ़िल्म बनाई। यह मूक फ़िल्म जो लंका दहन थी, ये पूर्णतः मूक फ़िल्म तो थी, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें सबटाइटल जो थे वो अंग्रेजी तथा मराठी में भी नीचे आते रहते थे आ रहे थे। तो यह फ़िल्म इस हद तक उस वक़्त जैसा कि सर ने बताया कि ये अत्यंत प्रसिद्ध हुई और दर्शकों के बीच बहुत अधिक सराही गई और यह फ़िल्म ने इतना अधिक व्यवसाय किया या कह लीजिए पैसा बटोरा कि कहा जाता है कि बैलगाड़ियों से सिक्के भर-भर कर जाते थे। और धीरे-धीरे जब देखा भई चूँकि ये वो समय था, जिस समय जैसा कि सर ने भी अभी इसको उद्धृत किया है कि जहाँ स्त्रियों को इस प्रदर्शनकारी कलाओं में भाग नहीं लिया जाता था। तो देखिए, इस घटना से जुड़ा हुआ एक और दूसरा पहलू मैं बताऊँगा आपको कि आज यदि हम भगवान राम का स्मरण करते हैं, तो हम सिर्फ़ अरुण गोविल जी ही चेहरा हमारे संपर्क में, हमारे दिमाग में आता है। लेकिन सभी लोग शायद जानते होंगे कि अरुण गोविल जी से भी पहले एक ऐसे कलाकार भी थे, जिन्होंने लगभग 8 से अधिक 9 या 10 फ़िल्मों में भगवान राम का जो चरित्र चित्रण किया था या भगवान राम की उन्होंने भूमिका का निर्वाह किया था, उनका नाम था प्रेमधर और जो पाया जाता है प्रेम अदीब नाम ज़्यादातर लोगों का जो सिनेमा से जुड़े हुए लोग होंगे, उन्होंने देखा होगा जो प्रेम अदीब ये अदीब इनका सरनेम नहीं, इनको नाम दिया गया था। चूँकि ये बहुत माना जाता था कि बहुत अदबी थे, बहुत ही संस्कारी थे और भगवान राम के रूप में इनका अभिनय करने के कारण इनका जो चरित्र था वो बहुत अधिक पुरुषोत्तम टाइप हो गया था, तो इसीलिए इनका नाम में अदीब नाम जोड़ दिया गया। बेसिकली इनका नाम प्रेमधर ही था। तो प्रेमधर हों या अरुण गोविल हों, इन सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में भगवान श्री राम का जो अभिनय किया, जिनकी भूमिका का जो इन्होंने निर्वाह किया, उनका नाम था अन्ना सालुंके। अन्ना सालुंके जो कि लंका दहन 1917 में जो मूवी आई थी, इसमें इन्होंने भगवान श्री राम की भूमिका का निर्वाह किया। इसमें भगवान राम के अलावा माता सीता की भूमिका का भी निर्वाह अन्ना सालुंके ने किया। जैसा कि मैं अभी बताया मैंने कि चूँकि उन दिनों स्त्रियों का प्रदर्शनकारी कलाओं में भाग लेना वर्जित था। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने ही अन्ना सालुंके जी ने ही दोनों ही भूमिकाओं का निर्वाह किया। इसके बाद समय-समय पर अनेकों फ़िल्मों ने इसमें भगवान राम के ऊपर बनी और अत्यधिक पैसा कमाया गया। लेकिन जो आज हम देखते हैं कि टेलीविज़न पर बहुत से मूवीज़ हैं, टीवी सीरियल्स हैं, जो भगवान राम या अन्य पौराणिक कथाओं के रूप में ज्ञान को हमारे सामने पेश करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, जब हमारे देश में ही भगवान राम के ऊपर बनी एक एनिमेटेड मूवी को रोक दिया गया। अब इसके पीछे की क्या कहानी है? ऐसा क्या हुआ था कि हमारे ही देश में, हमारे ही भगवान श्री राम के ऊपर बनी हुई एक विश्व प्रसिद्ध एनिमेटेड मूवी। अगर आप देखेंगे कि भारत देश में जितनी भी भगवान श्री राम को आधार मानकर जितनी भी मूवीज़ का निर्माण हुआ है, उसमें आईएमडीबी रैंकिंग के हिसाब से भी एक जो मूवी है, ये मैं उसी मूवी की चर्चा कर रहा हूँ। सन 1983 के करीब की बात है, जब जापान के एक बहुत प्रसिद्ध एक फ़िल्म निर्देशक थे युगो साको, वो भारत में आए थे और वो उन दिनों एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्री का नाम शायद आप लोग जानते होंगे द रामायण रेलिक्स, जिसमें उन्होंने भारत में 60 से अधिक यात्राएँ की और इस बीच में वो भगवान राम के चरित्र चित्रण का गहन अध्ययन कर रहे थे। लेकिन उन दिनों एक बहुत प्रसिद्ध न्यूज़पेपर हुआ करता था इंडियन एक्सप्रेस, इसमें इनके द्वारा किए गए इन कार्यों को लेकर थोड़ा-सा विरोध प्रकट किया गया कि इस प्रकार से उसमें लिखित किया गया कि ये भगवान राम के चरित्र चित्रण को थोड़ा-सा अलग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन जो सचिव थे, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की। हालाँकि बाद में यह मामला सुलझा लिया गया और सन 1993 में फिर जो ये थे युगो साको जो थे जापान के फ़िल्म निर्देशक, उन्होंने एक एनिमेटेड रामायण मूवी का निर्माण किया, जिसका नाम था रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम।
अब यह फ़िल्म 1993 में बनकर तो निर्मित हो गई, लेकिन सन 1992 में जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस कांड फैल गया हो गया। तो उस वक़्त तत्कालीन जो भारत सरकार थी, उन्होंने इस फ़िल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी। इसको रोक लगाने के पीछे 2 वजह बताई। पहली वजह तो ये बताया कि भई यह फ़िल्म चूँकि कार्टून मूवी है, तो कार्टून मूवी होने के नाते कहा गया कि हम भारत में भगवान श्री राम एक भगवान हैं और इन यहाँ पर यदि हम कार्टून के रूप में भगवान को पेश करते हैं, तो इससे मानवीय संवेदनाएँ प्रभावित हो सकती हैं। दूसरी बात यह बताया चूँकि अयोध्या में बाबरी विध्वंस कांड हो चुका था, तो ऐसी समय पर इतनी संवेदनशील फ़िल्म का लगना थोड़ा-सा सामाजिक सौहार्द के लिए उनको ठीक नहीं लगा, जिस वजह से यह फ़िल्म प्रदर्शित होने से हिंदुस्तान में रोक दी गई। लेकिन यह वो फ़िल्म है जिसको आईएमडीबी रैंकिंग यदि आप देखते हैं, तो हिंदुस्तान में बनने वाली समस्त जो पौराणिक फ़िल्में हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ आईएमडीबी रैंकिंग इसे प्रदान की गई 9.2। आज भी ये आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे तो इस पर आपको ये दिख जाएगी। हालाँकि बाद में अनेकों प्रयासों के बाद, युगो-साको के अनेकों प्रयासों के बाद यह फ़िल्म फिर हमारे हिंदुस्तान में प्रदर्शित हुई सन 1997 में। और निश्चित रूप से इसे हमारे भारत में अत्यधिक सराहा गया। इसके बाद लगातार भारत में भगवान श्री राम की जीवन गाथा से जुड़े हुए अनेकों फ़िल्मों, अनेकों कार्टून कह लीजिए या टीवी सीरियल्स कह लीजिए, इनका निर्माण हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अरुण गोविल द्वारा जिसमें भगवान श्री राम का रोल प्ले किया गया था रामायण। निश्चित रूप से उस वक़्त मैं भी बहुत छोटा रहा होऊँगा और मुझे हल्का-हल्का सा याद आता है जब रामायण हमारे देश में टीवी सीरियल के रूप में प्रसारित हुआ, तो लगभग कर्फ्यू सा लग जाता था। यहाँ तक कि रामायण देखते समय लोग अपने स्लीपर्स को उतार के, अपने जूते-चप्पल को उतार कर ही रामायण सीरियल देखते थे। इससे पता चलता है कि भगवान राम का हमारे भारतीय जनमानस पर कितना गहरा असर है। अब यही एक सबसे बड़ी बात है, सबसे प्रमुख विचार योग्य करने बात है कि जब भी कोई साहित्य का निर्माण हो, जब भी कोई फ़िल्म का निर्माण हो, तो हमें इतने संवेदनशील विषय के साथ पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। देखिए, जैसा कि अभी मैंने पूर्व में बताया कि वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित रामायण भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण को वृहद रूप में प्रसारित करने वाला प्रथम महाकाव्य था। लेकिन इस महाकाव्य में कुल 6 ही खंड हैं, कुल 6 ही कांड हैं। और बाद में जैसा कि भगवान राम का चरित्र चित्रण करते समय कई लोगों के मन में, कई लोगों के ज़हन में इस प्रकार की जिज्ञासा आती है कि भई भगवान कई बार मैं फ़ेसबुक या यूट्यूब या पता नहीं कहाँ-कहाँ मैं देखता हूँ कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। भगवान राम ने जो कि एक दलित ऋषि थे शंभूक जी, उनको तप करते हुए रोक दिया था, उनका वध कर दिया था। इस प्रकार की जो ये अनर्गल बातें हैं, यह उत्तरकांड के रूप में हैं, जिसका रामायण के जो हमारे जैसा कि अभी भनव सर ने भी बताया था कि जो रामानंद सागर जी ने भी विरोध किया था, लेकिन उनको अत्यधिक जोर डाला गया कि नहीं आप उत्तर रामायण का भी निर्माण कीजिए। हम सहज ही समझ सकते हैं कि इस मनोदशा का हमको सर्वधर्म समभाव के आधार पर बिल्कुल परित्याग करना चाहिए। हमें किसी भी साहित्य का निर्माण करते समय, किसी भी फ़िल्म का निर्माण करते समय यदि वह पौराणिक हमारे हिंदू धर्मों ग्रंथों का हिस्सा है, तो हमें इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि हम उसे तोड़-मरोड़ कर पेश ना करें। आज बिल्कुल सच है कि रामायण के आज 300 से अधिक अंश या कह दीजिए आप इसके और 300 से अधिक तरह की रचनाएँ अधिक अलग-अलग भाषाओं में निर्मित हो गई हैं। लेकिन हर साहित्यकार, हर फ़िल्मकार का ये स्वयं कर्तव्य है कि वो इस प्रकार की टिप्पणी, इस प्रकार के दृश्य, इस प्रकार के संवादों का प्रयोग कतई ना करें, जिससे कि भारतीय जनमानस की भावना आहत हो। देखिए हालाँकि अब एक स्थिति देखकर अत्यंत हर्ष होता है कि वर्तमान में निश्चित रूप से हमारे हिंदू समाज जो है वो अत्यधिक जागृत हो गया है। नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स में अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी अन्नपूर्णी। अन्नपूर्णी फ़िल्म में भगवान राम के चरित्र चित्रण को लेकर कुछ अनर्गल बात उसमें जोड़ी गई थी और जिसमें इस तरह की या नेटफ्लिक्स इस प्रकार की कुछ और भी कुछ ऐसी अपनी फ़िल्मों का निर्माण कर चुका है।
इससे प्रभावित होकर नेटफ्लिक्स का हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उन्होंने इतना अधिक विरोध किया कि इसके शेयर 22% तक गिर गए। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स के जो सह संस्थापक हैं उन्हें यूट्यूब पर आना पड़ा। उन्होंने अपना बयान साझा किया एक्स पर कि भई इस प्रकार की किसी भी तरह से हमको बचना चाहिए जिससे भारत में जनमानस की भावनाएँ आहत होती हों। तो मैं आशा करूँगा कि हम में से जब भी कोई किसी भी तरह का साहित्य, फ़िल्म डॉक्यूमेंट्री किसी भी तरह का निर्माण करते हैं, तो हम जो हमारे भारतीय जनमानस हैं, इनकी भावनाओं का विशेष रूप से ख़्याल रखें क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे दिल में बसते हैं और इनकी बिल्कुल हम सभी को सम्मान करना चाहिए। जय श्री राम। जी, बहुत बहुत आभार डॉक्टर पाठक। आपने सिनेमा घरों से लेकर के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस तरह से राम के चरित्र को लेकर के फिल्में बनाई गई, उसमें क्या चुनौतियां आई, किस प्रकार के विवाद हुए, उन सब मुद्दों पर अपनी राय रखी। इन अपेक्षाओं के साथ कि फिल्मकार जन आस्थाओं का सम्मान रखते हुए यदि काम करेंगे तो वो व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय हितों में होगा। आभार आपका बहुत बहुत। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर संजीव कुमार, जो गवर्नमेंट कॉलेज बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में आप भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। लगभग 1 दशक से अधिक समय आपको भी हो गया अध्यापन करते हुए, और आपका जो एरिया है अध्ययन का विशेष वो शैक्षिक मनोविज्ञान है। डॉक्टर संजीव कुमार की 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं अपने विषय से संबंधित, और उत्तर प्रदेश सरकार से भी आप पुरस्कृत हो चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएड क्यूरिकुलम डिजाइनिंग कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के सदस्य के रूप में भी आपने काम किया है, और बीएड पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तित करने और क्रियान्वित करने की दिशा में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर आप अपने कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर संजीव कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई आज अपने गुरु की एक बात का अर्थ समझ आया कि इंतजार का फल मीठा होता है। डॉक्टर भानावत सर, डॉक्टर हुडा सर, डॉक्टर लोहनी सर, डॉक्टर उषा मैम और भाई आशीष को सुना तो डॉक्टर गोपाल दास नीरज अक्सर कहा करते थे, यदि जीवन में अच्छा वक्ता बनना है तो बहुत अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। और शायद मैं दुर्भाग्यशाली होता यदि मैं पहले बोलता। मैं इन वैचारिक प्रसादों से अपने आप को सर महरूम कर लेता। जो मैंने सर को सुना, जब मैं भानावत सर को बोलते हुए सुन रहा हूं तो मुझे वाकई एक ब्रिगेडियर साहब 26 जनवरी को बोला करते हैं, सावंत, ब्रिगेडियर सावंत जब 26 जनवरी को राजपथ पर जब हमारे सैनिक मार्च करते हैं, जब व्याख्यान वो देते हैं तो वो आवाज की वो खनक थी। हुडा सर को देखे वो आत्मविश्वास की, जिसे हम लोग कहते हैं कसौटी है। और उषा मैम से कौन परिचित नहीं है। सबसे पहले मैं आयोजकों को कहूंगा, वाकई आप लोग वाकई प्रेरणा के पात्र हैं कि जनवरी 2024 में जब पूरा देश राम मंदिर, राम राज्य और प्राण प्रतिष्ठा पे विमर्श कर रहा है, आपने एक कसौटी स्थापित की है कि आप साहित्य, सिनेमा और श्री राम को लेके आए। और शायद इसी के लिए किसी विद्वान ने कहा है कि लीक लीक चींटी चले और लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीन ही चले शायर सिंह सपूत। वाकई आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को साधुवाद, इन्होंने इतने अच्छे एक विषय पे मुझे भी आमंत्रित किया। एक इस विषय पे यदि मैं इस विषय को थोड़ा सा मोड़ूं, श्रोताओं की रुचि के अनुकूल करूं, हम लोग अब तक बात कर रहे थे साहित्य और सिनेमा में राम। हिंदी भाषा के पुरोधा, हिंदी भाषा की शिला डॉक्टर लोहनी सर ने साहित्य के विषय में अपने विचार रखे। मेरे छोटे भाई आशीष ने सिनेमा के विषय में अपने विचार रखे। यदि इसमें कथन थोड़ा सा यूं कहूं, साहित्य, सिनेमा और राम, वही 3 आयाम हैं, वही 3 चर हैं, पर अर्थ थोड़ा भिन्न हो जाता है। श्रोता के रूप में 2 बार अवसर मिला। अलीगढ़ कुटुंब से आता हूं। अक्सर कमलेश्वर जी कहा करते थे अलीगढ़ी कुनबा, जब वो उर्दू अदब की बात किया करते थे कमलेश्वर जी, और वो अलीगढ़ आया करते थे डॉक्टर केपी सिंह या डॉक्टर नमिता सिंह के पास, तो हमें बैठने का अवसर मिला है उनके पास। वो कहा करते थे अलीगढ़ी कुनबा। तो वहां साहित्य और सिनेमा पे गोपाल दास नीरज भी बैठा करते थे। जनकपुरी में जो उनका आवास है वहां पे एक द्वंद्व होता था।
और अक्सर कहा करते थे नीरज सर, जब हमारे गुरु भी रहे हैं नीरज सर, उनसे साथ अवसर मिला है उनसे बहुत कुछ सीखने का, वो कहते थे कि साहित्य और सिनेमा का जो संबंध है वो कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, एक झूमत मद आपने एक के फाटत अंग। मतलब ये एक ऐसे विरोधाभासी और ऐसे प्रवृत्ति के दोनों एक चर हैं, एक ऐसे आयाम हैं जो ना दूर हो सकते हैं और ना नजदीक जब हो तो एक दूसरे को स्वीकार करने से भी कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, कैसे कहूं सखी कुछ कहा भी ना जाए। साहित्य चुनौती देता है सदैव सिनेमा को, अपनी आयु की, अपने वर्चस्व की, अपनी गंभीरता की, अपने अनुभव की, अपने मत की, अपने उस फलसफे की, उन जड़ों की, उस संस्कृति को एक कसौटी के रूप में बीच में रख देता है। साहित्यकार अक्सर इस विषय पे कहते हैं साहब हमारा वर्चस्व सिनेमा से श्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कहता हूं कौन इसमें गलत है, आयु में संदेह। तब जब साहित्य 1913 में नोबेल प्राइज ले रहा था तब सिनेमा जन्म ले रहा था, सिनेमा जन्म ले रहा था 1913 में, तो वो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझसे आप पूछें तो मैं ये कहूंगा साहब कि साहित्य और सिनेमा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इनका संबंध यदि आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मनोविज्ञान का मैं विद्यार्थी हूं तो मनोवैज्ञानिक के व्यवहारिक मनोविज्ञान के आधार पर साहित्य और सिनेमा को मैं परिभाषित करने का प्रयास करूंगा। अपने घर में देखिए, मेरे घर में मेरे पिता हैं, एक मैं उनका पुत्र हूं। मेरे पिता सही हैं यदि वो ये कहते हैं कि मैंने दुनिया देखी है। मेरे पिता सही हैं यदि वो कहते हैं मेरा परिप्रेक्ष्य व्यक्तिगत नहीं सामाजिक ज्यादा है, समाज के प्रति मेरी जवाबदेही ज्यादा है। एक पुत्र के रूप में मैं देखूं तो पुत्र का अपना ये तर्क भी कुछ हद तक सही है कि मेरी उम्र है, मेरी अपनी महत्वाकांक्षाएं। पिता पुत्र से कहेगा तुम्हें वो अनुभव नहीं है, अभी तुम अभी मात्र तालीम के दौर में हो, मैंने इल्म हासिल कर लिया है। हम जानते हैं कि तालीम एक प्रक्रिया है, एक साधन है और इल्म एक साध्य है। पिता का जो भाव होगा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से कहूं तो जिसे हम लोग इंट्रोवर्जन कहते हैं, अंतर्मुखी कहते हैं, जो कि एक बड़े उच्च कोटि के विचारक की व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं, उस ओर झुका हुआ होगा। और पुत्र का जो व्यक्तित्व है, उसके जो व्यवहार का समस्त मापदंड है वो एक्सट्रोवर्जन की ओर होंगे, बहिर्मुखी होगा। वो इंटरैक्ट करना चाहेगा सोसाइटी से, वो रिस्क लेना चाहेगा, वो चुनौतियों को स्वीकार करना चाहेगा, वो अपनी वेदना को राष्ट्र के समक्ष अपनी कमजोरी के रूप में नहीं रखेगा, वो मंच तैयार करेगा। पिता आदर्शवाद की कसौटी के रूप में खड़ा रहेगा, पुत्र समक्ष तर्क देगा कि मैं व्यवहारिक प्रयोजनवाद के साथ हूं। पिता कोई अलग नहीं है। पुत्र भी जानता है कि जो पिता मुझसे इस वक्त किसी आधार पर यदि तर्क कर रहा है, यदि मुझे डांट रहा है, तो मेरे प्रति द्वेष नहीं है पिता का, वो अनुराग है, वो प्रेम है, वो उसकी अपेक्षा है जो मुझसे है। वो अपने ख्वाबों को, अपनी छवि को मुझ में देखता है, तो उसमें एक लेश मात्र भी, चांद में जैसे दाग स्वीकार होता है, पिता पुत्र में दाग भी स्वीकार नहीं कर सकता। ये गजब का भाव है। और साहब मैं धन्य हूं कि मैं इस भारत में पैदा हुआ हूं। पिता पुत्र का ये संबंध, ये साहित्य और ये सिनेमा का संबंध है। पिता परंपरा का ध्वजवाहक है, पुत्र एक युवा प्रभा का प्रतीक है। पुत्र कहता है पिता एक अवसर दो, मेरी स्वतंत्रता पे विश्वास तो करो। पिता की, जिसे हम लोग कहते हैं ना, एक ओवर पॉजेसिवनेस, वो पुत्र को बांध के रखती है कि जो कुछ है तू, मैं तुझ में समाहित हूं, तो इसलिए मेरा एक भाव है, मुझे तेरी चिंता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि सब साहित्य और सिनेमा में समझ और सामर्थ्य का फर्क है। दोनों का सौंदर्य शास्त्र बिल्कुल अलग है, सौंदर्य बोध बिल्कुल अलग है। अगर कोई पूछे मनोविज्ञान के किसी विद्यार्थी से, सब व्यक्तित्व में वातावरण का प्रभाव ज्यादा होता है या वंशानुकरण का प्रभाव होता है, तो डॉक्टर जैनसन की बड़ी अच्छी एक हाइपोथेसिस है 1969 में उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था साहब जो वंशानुक्रम है वो आपकी बायोलॉजिकल बाउंड्री फिक्स कर देता है कि आपका बौद्धिक विकास कितना होगा, बट उस बायोलॉजिकल बाउंड्री में आपका व्यक्तित्व में कौन कौन से शील गुण आपके व्यक्तित्व में विकसित होंगे, ये आपका एनवायरमेंट तय करता है। तो इसलिए साहित्य और सिनेमा एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। बस इतना है, स्वीकार कर ले साहित्य इस बात को कि सिनेमा भी साहित्य की एक विधा है,
सिनेमा भी साहित्य की एक विधा है और सिनेमा ये स्वीकार कर ले कि साहब साहित्य आपकी प्राणवायु है, आपकी अनिवार्यता है। और कहते हैं ना, इस बार जब मैं महसूस किया सर इस बात को, भानावत सर मैं चाहूंगा, जब इस बार 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, साहब मैं कतई यूट्यूब और गूगल की कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो तथ्यों के रूप में कहीं मिलेगी। जब 22 जनवरी को 12:29 पर जब प्राण प्रतिष्ठा के वो 84 सेकेंड आए, ना मैंने पिता की ओर देखा, ना पिता ने मेरी ओर देखा। मैं अब कोरिलेट करूं उसे तो मैं पिता को साहित्य मानूंगा, पुत्र को मैं सिनेमा मानूंगा। पर जैसे ही 12:29 पे वो सेकंड शुरू हुए और श्री राम की छवि टीवी पे आई, बिना कुछ कहे हमारी चेतना ने मुझे भी खड़ा कर दिया और मेरे पिता को भी खड़ा कर दिया। साहब मेरे जीवन का मैं किस मत का समर्थन करूं, किसके खिलाफत जाऊं, पर मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ था वो कि आज कोई एक ऐसा विषय है जिस विषय पे मैं अपने पिता के साथ ज्यों का त्यों खड़ा हुआ। मेरे लिए सर वो एक विलक्षण क्षण है। मुझे तो राम उस वक्त मिल गए, मेरे लिए वही है। राम कोई सामान्य पद नहीं है। राम को लेकर अगर आप भारत में किसी व्यक्ति से बात करोगे तो छोड़िए आप शिक्षित वर्ग को, एक आम आदमी, एक रिक्शा चलाता व्यक्ति भी आपको तुलसी से बड़ी बात कह जाएगा। एक आम अनपढ़ महिला भी वाल्मीकि से बड़ा आपको ज्ञान दे जाएगी। ये एक ऐसा विषय है। हिंदी के किसी विद्वान से मैंने सुना है कि ज्यों केले के पात में हर पात पात में पात, त्यों राम की बात में हर बात बात में बात। राम इतना व्यापक है, पर राम के साथ समस्या जो मुझे दिख रही है एक मनोविज्ञान के छात्र होने के नाते, कि राम को हमने एक चित्र में बांध दिया है, एक चरित्र में बांध दिया, एक पात्र के रूप में बांध दिया है। मुझसे पूछे राम क्या है तो मैं कहूंगा राम धर्म है। वो कोई हिंदू धर्म नहीं है, वो किसी एक सोच विशेष को मानने वालों का धर्म नहीं है। ये वो धर्म है जिसको मनुस्मृति में बड़ा अच्छा एक कथन आता है संस्कृत में कि धृति क्षमा दमो अष्टे शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधम इदम धर्मम लक्षणम। ये वो धर्म है जो कि 10 गुणों का समग्र है। वो व्यक्ति जो धैर्यवान है वो धार्मिक है, वो व्यक्ति जो क्षमाशील है वो धैर्यवान है। धृति क्षमा दमोस्ते, जो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर सकता है वो धार्मिक है। जो चोरी ना करे, अन्य और किसी के संसाधनों के प्रति आकर्षित ना हो, वो धर्म है। जो उसको धारण करता हो, धृति क्षमा दमोस्ते, शुचिता बनाए रखता हो, वो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे, वो बुद्धिमान हो, वो विवेकवान हो, उसे क्रोध ना आए, एकदम धर्मम लक्षणम। राम धर्म है। और तभी मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा राम आचार मीमांसा है। अगर दर्शन शास्त्र का कोई छात्र मुझे सुन रहा हो तो दर्शन शास्त्र के जब हम क्षेत्र को पढ़ते हैं तो उसको 3 हिस्सों में हम लोग विभाजित करते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स जिसे हम लोग कहते हैं। तत्व मीमांसा, जहां हम बात करते हैं आत्मा परमात्मा की सृष्टि और सृष्टा की, सृष्टि का कर्ता कारक कौन है, उपादान कारक कौन है सृष्टि का। जब हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, इस भौतिक जगत की बात करते हैं और इस भौतिक जगत के माध्यम से कैसे उस तत्व को प्राप्त किया जा सके, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने दिया है, अष्टांग योग। और अष्टांग योग के वही यम और नियम धर्म है जिनका पालन मोदी जी ने भी किया। 5 यम और आपके 5 नियम। राम आचार मीमांसा है, राम एक आचार संहिता है। राम को पूज्य बना के हम, और अक्सर होता है घर में, हमने जिस चीज को पूज्य बनाया उसको हमने दीवारों पे लगा दिया है। जिसको हमने पूज्य बनाया उसको हम सुला देते हैं दिन होने के बाद। राम एक आचार संहिता है, वो कोड ऑफ कंडक्ट है। किस स्थान पर, किस प्लेस पर हमें कैसा व्यवहार करना है, राम वो है। किस व्यक्ति से हमें कैसा आचरण करना है, किस पर्सन से हमें बात कर रहे हैं, राम वो है। किस समय हमें किस विषय पे किस तरह के शब्दों का, किस तरह के भावों का प्रयोग करना है, राम वो है जो कि हमें प्लेस, पर्सन और पीरियड के समक्ष अपने वक्तव्य किस प्रकार से रखने हैं, अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से रखनी है। राम कुछ और नहीं है, राम एक नियमावली है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। राम एक संविधान है, राम कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मेरा मन कभी करता है कि साहब क्यों संविधान की शुरुआत में राम का चित्र है, मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं संपूर्ण पेज पढ़ने से यदि आप बचना चाहते हो तो उस पहले पेज को आप देख लीजिए, आप पूरा संविधान समझ जाएंगे। यही संविधान है जो राम है
और इसी राम की व्याख्या अगले पेजों में आपको पढ़ने की मिलेगी, चाहे वो कितने पन्नों की ग्रंथावली क्यों ना हो। राम लिखित संविधान है, राम एक जीवन शैली है, उर्दू में कहूं तो राम एक कानून है, और एक सरल भाषा में कहूं तो राम देसी घी है, शुद्ध 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 देसी घी है, जो गर्भाधान संस्कार में भी जिसकी आवश्यकता पड़ती है और अंतिम संस्कार तक जिनकी आवश्यकता पड़ती है, और मरने के बाद भी हमारी तस्वीर के समक्ष दिए के रूप में उस घी का प्रयोग किया जाता है। राम वो शुद्ध विशुद्ध देसी घी हैं जो जहां पड़ जाते हैं उनका सौंदर्य बढ़ा देते हैं, वो जिससे जुड़ जाते हैं उसका स्वाद बढ़ा देते हैं। और नमन है अल्लामा इकबाल साहब को जब वो कहते हैं इसी राम को कि इमाम हिंद हैं। इमाम शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? वो इमाम मतलब जो रहबर है, जो आपको राह दिखाता है, जो आपको दिशा देता है। यही कारण है कि उन्होंने कहा उनको इमाम हिंद। और अब आप मुझसे कहें साहब, जो आपकी विमर्श का जो आपका शीर्षक है साहित्य, सिनेमा और राम, मैं साहित्य को पिता कहूंगा, सिनेमा को पुत्र कहूंगा, और राम वो धर्म है, आचरण की वो विधि है, वो जीवन शैली है, वो आचार संहिता है, वो मीमांसा है जो यदि पिता और पुत्र के व्यवहार को दिशा दे तो पिता और पुत्र दोनों सही दिशा में अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। ना पिता पद से भ्रष्ट होगा, ना पुत्र पिता के खिलाफ जाएगा। पिता और पुत्र दोनों मिलकर सृष्टि के लिए अपना योगदान देंगे। मेरे हिसाब से साहित्य और सिनेमा में राम यही है, राम यही है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे अवसर आप लोगों ने दिया और मैंने मर्यादा रखी 15 मिनट की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार भाई डॉक्टर संजीव कुमार। आपने साहित्य और सिनेमा के उन अंतर संबंधों की बहुत ही दार्शनिक और साहित्यिक व्याख्या करते हुए राम को अनेक विशेषणों से विभूषित किया। राम आचार संहिता है, राम आचार मीमांसा है, राम नियमावली है, राम संविधान है, राम जीवन शैली है, राम कानून है, राम इमाम हिंद है। और राम के विभिन्न रूप साहित्य और सिनेमा में किसी न किसी रूप से प्रस्फुटित हुए हैं। बहुत बहुत आभार आपका अपने सारगर्भित वक्तव्य के लिए। और अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। कुछ मित्रों ने इसमें हैंड रेस किए हैं। यदि वो कोई सवाल पूछना चाहें तो हमारा उनसे अनुरोध है कि वो अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें, क्योंकि इस सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा अच्छा लगेगा यदि आप वीडियो अपना ऑन कर सकने में सक्षम है। तो कोई भी आपकी टिप्पणी हो संक्षेप में या सवाल, हमारे तीनों जो आज के विशेषज्ञ हैं वो मौजूद हैं इस सत्र में, आप सीधे उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, 109 पार्टिसिपेंट हमारे इसमें अब तक जुड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि चर्चा हो, अच्छा रहेगा। कोई सवाल पूछे, केवल सर्टिफिकेट प्राप्त करना हमारा ध्येय नहीं है। यदि कुछ सवाल आप पूछेंगे तो हमें भी लगेगा कि इस चर्चा को आपने किस रूप में ग्रहण किया है और विषय के कुछ और पक्ष उद्घाटित हो पाएंगे। मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है, तो विषय इनको स्वतः स्पष्ट है। तो अब इससे पूर्व के मैं आभार प्रदर्शन के लिए विभाग के अध्यक्ष आयुष जी को आमंत्रित करूं। मैं हमारे अतिथियों को ई सर्टिफिकेट और ई स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए प्रियंका सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, इस सूचना के साथ कि कल भी हमारा एक आयोजन था, जर्नलिज्म डे, और ये कितने एक मीडिया शिक्षक के लिए गौरव की बात है कि उनका जन्मदिन मीडिया के दृष्टि से जो ऐतिहासिक दिन है उसी दिन मनाया जा रहा है। 29 जनवरी ये इनका जन्मदिन था। तो कल तो उनकी अनुपस्थिति में बधाई नहीं दे पाए, एक दिन विलंब से आज हम उनको बधाई दे रहे हैं। और बाद में मैंने फोन किया, मैंने कहा कि दिल्ली में तो सारी मिठाइयाँ गायब हो गई और ये टेलीविजन पर आ रहा है कि भारतीय विद्यापीठ की प्रियंका सिंह वो सारी मिठाइयाँ खरीद के ले गई हैं, तो हमको तो जानकारी मिली नहीं। तो अब जब भी कभी फिजिकल मोड में आयोजन होगा तो तैयारी रखें, सारे सहभागी आपके यहाँ पहुंच रहे हैं मिठाई खाने के लिए। सर मैं भी थोड़ा सा बधाई के साथ सर मैं थोड़ा समय और लूंगा आपसे। हाँ आशीष जी। जी सर, ये मैं यहाँ चैट में देख पा रहा हूँ, एक दो प्रतिभागी ऐसे हैं जिन्होंने एक सवाल किए हैं।
जिनका उत्तर मैं देना चाहूँगा। अच्छा, वो प्रतिभागी है नहीं क्या? नाम बोलिए ना, कौन है वो? सर ये हैं शैल कुमारी। शैल शैल कुमारी कुमारी है क्या जी। हमारे इस उसमें? और दूसरे? सर अ, अभी दोबारा लिखा हुआ है कि एक सवाल है एंड दैट क्वेश्चन इज देयर चैट मैंने बॉक्स। क्वेश्चन पढ़ लिया है। अभी जब मैंने अपने विचार रखे थे तो मैंने इस तरह के ही प्रश्नों को आधार मानकर ही मुख्य रूप से अपने विचारों को रखा था। देखिए शैल कुमारी जी, सर्वप्रथम तो मैंने अभी आपसे एक बात बताया था कि जो वाल्मीकि जी कृत रामायण है, चूँकि रामायण के बारे में सर्वप्रथम भगवान श्री राम के बारे में सर्वप्रथम जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, यह वाल्मीकि कृत रामायण से हुआ है। इनसे पहले मैं जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ़ ऋग्वेद अथवा बौद्ध की जो जातक कथाएँ हैं, इनके बारे में कुछ सुनाई पड़ता है। तो जो वाल्मीकि कृत रामायण है, इसमें जो हमारा 7वां कांड जिसको हम लोग उत्तर कांड कहते हैं, यह था ही नहीं। यदि आप इसको आप स्वयं चूँकि खुद शायद शोधार्थी होंगे या शिक्षक होंगे, आप स्वयं इसको देखेंगे, तो सिर्फ़ जो वाल्मीकि कृत रामायण है, इसमें केवल 6 ही कांड थे और उसके बाद जो उत्तर कांड जोड़ा गया है जो उत्तरकांड जोड़ा गया है, इसके रचयिता कभी सामने नहीं आए। निश्चित रूप से साहित्य के साथ छेड़छाड़ ज़रूर जो बाद के कुछ लोगों का प्रयोजन रहा होगा। इस छेड़छाड़ के चक्कर में ये इस प्रकार की बातें आती हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन रखा है कि सीता को चरित्रहीन क्यों कहा गया? इस प्रकार की कोई भी विचार, इस प्रकार की कोई भी जो प्रश्न कभी भी ओरिजिनल या मूल साहित्य में कभी नहीं रहे। क्योंकि वाल्मीकि कृत जो रामायण है, उसमें एकदम जो लास्ट हमारा जो 128वां चैप्टर है, उसमें क्लियर मेंशन है कि अंत में अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई। इसके पश्चात का जो भी कांड जोड़ा गया, यह प्रक्षिप्त है। वो किस प्रयोजन से जोड़ा गया, यह आप स्वयं ही विचार कर लीजिए, तभी आपके ज़हन में इस प्रकार का प्रश्न आया है। धन्यवाद। चलिए, और कोई? Meanwhile, I wanted to inform to all the participants that we have already shared the feedback link. So please start filling the feedback link so that you can generate your certificate, and this room will be open only till 7:45. So hurry up in filling the feedback form. While filling the feedback form, do ensure that you are following everything which has been written in the chat window. Sir, please go ahead. सर मेरा सवाल है। हेलो हाँ, अपना नाम और परिचय बताएं। सर, मेरा नाम विकास यादव है। मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ। मैंने बीजेएमसी किया है और फिलहाल एमजीएमसी कर रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा। कहाँ से है आप? सर हम औरंगाबाद बिहार से हैं सर। ओके और जी, गया मगध यूनिवर्सिटी से हमारा पीजी चल रहा है सर। ठीक है। हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं और किनसे पूछना चाहते हैं? सर मेरा सवाल सभी से है कि गांधी जी के राम इतने कमजोर क्यों थे? क्या राम इतने निर्बल थे कि उन्हें साबित किया जा सके? क्या राम और रहीम के चरित्र की तुलना की जा सकती है? गांधी जी ने कभी राम के शौर्य की प्रशंसा या फिर उसका दर्शन क्यों नहीं करवाया? हाँ साहब, कोई देंगे जवाब? नहीं सर, मैं प्रयास करूंगा। मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, फिर भी मेरे भाई, जैसा आपने कहा कि महात्मा गांधी के राम इतने कमजोर क्यों हैं, मेरे पास कोई संदर्भ नहीं होगा आपको कोई देने के लिए। बस एक बड़े भाई होने के नाते एक बात कहूंगा सर। हथियार, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको सर। किसी व्यक्ति के हाथ में होने से व्यक्ति शक्तिशाली हो या न हो, हथियार का अपना सामर्थ्य कम नहीं होता है। राम कमजोर नहीं रहे, ना गांधी जी के राम कभी कमजोर रहे। राम एक हमारे यहाँ, मैंने कहा ना, एक चरित्र के रूप में आप जब जब राम को मानोगे आप। एक बड़ा अच्छा जावेद अख्तर एक बार कह रहे थे कि हमने माओ को देवी बनाकर इसलिए पूजा कि हम शायद औरतों को उनके हक नहीं देना चाह रहे थे। क्योंकि जहां आप माओ को औरत बनाओगे तो उनके हुकूक आपको उनको देने पड़ेंगे। हमने यही किया महिलाओं को लेकर, हमने वक्त से पहले उनको देवी बना दिया। तो कहाँ राम कोई जादूगर नहीं है, राम कोई अलादीन के चिराग घिसने के बाद वो उतर के आएंगे, अचानक किसी व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ा देंगे, ऐसा भी राम नहीं। राम
एक जीवन शैली है, या यूं कहूं कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो मैंने पहले भी कहा आपको। राम आपको प्रेरणा देते हैं, राम आपको डूज एंड डोंट डूज की बात करते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। राम ये नहीं कहेंगे कि मैं किसी कमजोर व्यक्ति के पास आकर उसका सामर्थ्य बढ़ा दूंगा, या किसी शक्तिशाली के पास हूं तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। राम अपने आप में आपकी इच्छा शक्ति में है, महसूस करने वाली बात है। मैं जब अहम ब्रह्मास्मि वाला जो भाव है, अयम आत्मम ब्रह्मम प्रज्ञान ब्रह्मम शिवो अहम, मैं शिव हूं, मतलब जब आप अर्जुन और कृष्ण का संवाद कभी आप सुने तो कृष्ण ने कुछ और नहीं किया था, बेस्ट काउंसलर एवर बोर्न। अगर मैं कृष्ण को यह भी ना छोड़ूं साहब, कृष्ण कोई मतलब धर्मों की सीमाओं से बाहर जाऊं, एक मनोवैज्ञानिक, एक काउंसलर मैं मानूं कृष्ण को, कृष्ण ने कुछ और नहीं किया था। यह कहना बिल्कुल गलत है कि साहब अर्जुन को मोह पैदा हो गया था, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यदि एक क्षत्रिय को अपने शत्रु से मोह पैदा हो जाता है, और खासकर उस शत्रु से जिसने उसकी भार्या का अपमान किया हो, उसके परिवार को जलाने का प्रयास किया हो, तो ये मात्र अलंकारों का प्रयोग लिखने वालों ने किया है कि मोह पैदा हो गया, क्योंकि वो अर्जुन को कमजोर नहीं दिखाना चाह रहे थे। अर्जुन नायक था हमारा, वो हीरो को कमजोर नहीं दिखाना चाह रहे, उन्होंने लिख दिया मोह उत्पन्न हो गया। मोह नहीं, सीधी बात है, अर्जुन डर गए थे, और डरना भी स्वाभाविक है। यदि छात्र के समक्ष उसका गुरु खड़ा होगा, गुरु द्रोण खड़े होंगे, गुरु भीष्म खड़े होंगे, यह स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है कि उसे भय लगेगा। और कृष्ण ने कुछ और नहीं किया था। जब गांडीव हाथ से छूट गया, कृष्ण ने मात्र उसको यह विश्वास दिलाया था कि डू योर ड्यूटी, अपना काम करो। उन्होंने हथियार खुद नहीं उठाया, श्री कृष्ण ने उसको ही उसका सामर्थ्य से उसके परिचय कराया। इसलिए हम कहते हैं परामर्श कुछ और नहीं है, परामर्श आपकी समस्याओं का समाधान करना नहीं है, परामर्श आपको अपनी समस्याओं को समाधान करने के योग्य बनाना है। तो राम अपने आप में वो औषधि हैं जो जिसके पास जाएंगे उसके इम्यून सिस्टम के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरा ये बस एक सामान्य मनोविज्ञान का प्रयास है, बाकी मैं भाषा का विद्यार्थी नहीं हूं। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका इनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रियंका सिंह को कि वे हमारे अतिथियों को ई सर्टिफिकेट और ई मोमेंटो भेंट करें, इस सूचना के साथ कि हमारी अगली वेबिनार 7 फरवरी को है। आपको पता होगा हरिशंकर परसाई जो एक प्रख्यात व्यंग्यकार थे, उनके व्यंग्य लेखन को हमने इस बार विषय बनाया है अपनी चर्चा का, परसाई के व्यंग और समकालीन समाज। शाम को 6 बजे विस्तृत सूचना आपको हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएगी। So thank you so much to all my eminent speakers today, and these certificates and mementos are not for any certification purposes. आप सब accomplished experts हैं अपने डोमेन के। ये मैंने इसलिए रखा है कि ये जब आप देखें, हमारी टीम मीडिया सीरीज ऑर्गेनाइज करने वाले बनावत सर की ये टीम हमेशा याद आती रहे, और ये अच्छे फैबुलस वेबिनार की खुशबू आप तक आती रहे, और आप इसे याद करते रहें, और हम जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा इन सारे एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ मिले। ये पर्पस सिर्फ इतना है। बहुत ही सुंदर और बड़ी तीव्रता से आपने सर्टिफिकेट बनाए, हस्ताक्षरित किए, इसके लिए बहुत आभार आयोजकों को। ये कॉपीज जा रही हैं आपको, कॉपीज इमीडिएटली। जी धन्यवाद। बस एक बात मैं आपके धन्यवाद पूरा होने से पहले कहूंगा कि राम के बारे में सब कुछ उत्तर यहाँ से नहीं मिलेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, उत्तर अपने आप खोजने पड़ेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि कई बार ये होता है ना कि गांधी के राम, फलाने, गांधी ने राम को खोजा और एक अंग्रेज जैसी एक बड़ी सभ्यता जो पूरी दुनिया पर हावी थी उसको खदेड़ भगाया। तो गांधी के राम कहाँ से हो गए? हमें इंसानियत आपको अपने राम ठीक करने पड़ेंगे। जिन भी राम की तलाश आपको है, जिस भी तरह से आप प्रेरित होते हैं, तो आपको अपने राम खुद चुनने होंगे। तो मुझे लगता है कि जब हम कई बार प्रतीकात्मक शब्दावली में प्रयोग करते हैं कि राम उनके कमजोर, इनके ताकतवर, राम किसी के कमजोर नहीं होते। आपके राम कमजोर हो सकते हैं अगर आप खुद कमजोर हैं तो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड हमारे सारे अतिथिगण, एमिनेंट स्पीकर सब, अच्छा अभी धन्यवाद प्रस्ताव बाकी है, उसके बाद फ्री हैं। पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट का लिंक शेयर किया गया है, आप क्विकली सर्टिफिकेट्स जनरेट करने के लिए फीडबैक बने प्लीज। यस सर। चलिए, अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए विभाग की अध्यक्ष, भारतीय विद्यापीठ का जो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन है, उसके अध्यक्ष आयुषी सचदेव चोपड़ा से अनुरोध करूंगा कि वे आप सभी का आभार प्रदर्शन करें। आयुषी जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया।
और आज का वेबिनार मैंने सुना तो मुझे लगता है कि शुरू में हमारे पास सवाल इसलिए नहीं आए कि बहुत ही बखूब तरीके से इस इतने मूल्य टॉपिक को हमारे अतिथिगण ने, हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स ने इसको पिरोया। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सारे एमिनेंट स्पीकर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमें समय दिया, हमारे लिए समय निकाला। 100 से प्लस हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े और उनके इस एक्सपीरियंस को गेन कर पाए। काफी स्टूडेंट्स से, अराउंड सर्कल से, टीचर्स, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े। तो आई थैंक प्रोफेसर नवीन सर, संजीव सर एंड आशीष पाठक सर फॉर गिविंग अस टाइम, sparing time for us and giving this so intellectual lecture to our students, to our participants. So I also thank Sanjeev Bhanawat sir and MN Huda sir for visualizing this, and nonetheless meri team, Usha ma'am, Usha Sahane ma'am, Priyanka ma'am and the backend team plus my participants. Thank you all for joining. ऐसे ही आप लोग सब ज्वाइन करते रहें, इससे हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है। सो संजीव सर ने आगे के वेबिनार की डेट अनाउंस कर दिया। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रजिस्टर फॉर द सेम। थैंक यू सो मच।